Hello everyone. So as per in the last video we are discussing about coordination compound, and in the last topic which we have discussed over there, that is the oxidation number. Okay, that how we can calculate the oxidation number of central metal atom. Now we proceed further. The next topic which we are going to discuss, that is the coordination polyhedral. Okay, coordination polyhedral. Okay, so this is our next topic, coordination polyhedral. Now the question arises that what is the meaning of the coordination polyhedral? Okay, what is it? It is the spatial arrangement. Okay, it's what? It is a spatial arrangement. Okay, it is what? It is a spatial arrangement of what? Ligands. It is a spatial arrangement of the ligand which are directly attached to central atom. Okay, so spatial arrangement means what would be the geometry of the ligand, that is known as coordination polyhedral. Okay, for example, if I'll say Ml4, okay, if I'll say in general, I will take example over here. Okay, the example here is, I will take the example that will be Ml4. Okay, so this is the example Ml4. So you can see this is the metal. Okay, definitely it would be central metal atom. And what is L? These are what? These are the ligands. Now the question arises, what type of arrangement these are having? Spatial arrangement, that means in the three-dimensional, what type of geometry it is having. Okay, so when I will say, then it would be having two type of arrangement. The first one, see, what is it? This is the type of arrangement. कौन सा है ये? गेस है आपको? आइडिया है कौन सा ये? दिस इज व्हाट? स्क्वायर प्लेनर. Okay, and another arrangement which it could have Ml4, that would be, जो आप करके ही आए हो, कौन सी शेप बनी है? दिस इज व्हाट? Tetrahedron. So when we are having Ml4, then this coordination compound is having two type of arrangement. Could have two type of arrangement. One we can say tetrahedral, another one could be square planar. Okay, same for when I'll go for Ml6. Okay, I will discuss here Ml6. Okay, when I'll talk about Ml6, so that means again this is a central metal atom. These are the 6 ligands. Number of time, I think until we have started this chapter, that we have discussed that when the 6 ligands are present, then the arrangement could be, which type of arrangement? It would be L and then another one L here. So this type of arrangement, जहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 4 लाइगेंड जो हैं दे आर प्रेजेंट इक्वेटोरियल पोजीशन, 2 लाइगेंड जो हैं दे आर प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन. सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज octahedral. Okay, this arrangement is octahedral. Same when 5 ligands would be there, when we are having 5 ligands, Ml5, 5 ligands could be there, then the arrangement would be, देखिए फिर क्या होगा arrangement हमारा, that will be trigonal by pyramidal. आपको इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी ना, कि क्या होनी चाहिए? ये होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये होती है dsp2,
ओके, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी इसकी sp3 होगी, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी dsp2, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन इसकी, एक हमारी होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन, इसकी जो होगी ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल रह गया हमारा, इसकी होती है sp3d2, आपने अभी तक यही पढ़ी थी, और यहाँ पे एक और हो सकती है d2sp3। ये कैसे होगी, जैसे हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ओके, हमें आगे थ्योरीज पढ़ने वाले हैं बीबीटी एंड सीएफटी, जब हम वो स्टार्ट करेंगे देन यू शुड बी क्लियर कि यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन कैसी, आउटर तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनर जो है डी ऑर्बिटल कैसे इन्वॉल्व है ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वी आर हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर देन ऑल्सो वी आर हैविंग sp3 और sp3d, okay, so we are having this type of hybridization over here. Trigonal bipyramidal, what type of arrangement it would be, नाम से ही क्लियर है, LLL ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट वुड बी लाइक दिस, ट्राइंगल बनेगा एंड यहाँ पे क्या होंगे, व्हाट वुड बी देयर, दो एक्सियल लाइगेंड्स होंगे, सो दीज आर इक्वेटोरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, ऐसे कुछ करके ट्राइंगल बनता है और हमारे पास ये दो लाइगेंड है, दे आर प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, सो दिस इज़ द अरेंजमेंट, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन, हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ व्हाट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन which tell us about the spatial arrangement of the ligand which are directly attached to central metal atom, that the ligands which are attached to central metal atom, how they are arranged themselves in the three dimensional, ठीक है। so these are the different type of the structures which we are discussing here, ओके। इवन व्हेन वी आर हैविंग ML5, तो एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, एक हमारे पास और प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल, ओके ओके, एक होती है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल, तो वो कैसे होती है वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है, हम डेफिनेशंस ही कर रहे थे, तो हमारी एक लास्ट डेफिनेशन बची थी, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो हम कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं कोऑर्डिनेशन के, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के हमारे पास मोस्टली कितने टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट होते हैं देखिए होमोलेप्टिक, और एक होते हैं हमारे पास हेट्रोलेप्टिक, ओके। अब होमोलिप्टिक क्या होते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ओके, होमो मीन्स सेम, और अब लेप्टिक मीन्स लाइगेंड, ठीक है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ओके, सो लेप्टिक अगेन मीन्स लाइगेंड, ओके। सो होमोलिप्टिक का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल हेयर फॉर होमोलिप्टिक, देखिए कौन सी एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ओके। द एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हेयर दैट वुड बी निकल अमोनिया 6, सो यहाँ पे लाइगेंड जो प्रेजेंट है अमोनिया 6, ये कौन सा है, इट इज़ अ सेम टाइप ऑफ लाइगेंड, एक ही सिंगल लाइगेंड है, सिंगल टाइप ऑफ लाइगेंड है, सिंगल टाइप है लाइगेंड की, ठीक है। व्हेन आई विल से हेट्रोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक इज़ डिफरेंट, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ प्लेटिनम, ओके, अमोनिया 2Cl2, सो आई हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइगेंड, 2 टाइप्स ऑफ लाइगेंड, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट्स नॉट कंपल्सन कि मैंने 2 लिए हैं तो 2 ही होंगे, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, सो वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, एक होते हैं होमोलिप्टिक दैट इज हैविंग अ सेम टाइप ऑफ लाइगेंड, ओके, दिस इज द एग्जांपल, एंड हेट्रोलिप्टिक दैट इज हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड कुड एग्जिस्ट ओवर देयर। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशंस, ओके। एक बार सम अप कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, देन उसके बाद उसकी हमने ज्योमेट्रीज़ की बात की है कि कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया था कल, वो था टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, उसमें हमने बात की है होमो और हेट्रो की, और उसकी एग्जांपल्स की बात की है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग, ओके, द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ द IUPAC naming, okay, IUPAC naming for coordination compounds,
सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द IUPAC नेमिंग फॉर द व्हाट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमने क्या करना है, IUPAC नेमिंग फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी विल डिस्कस, ठीक है। नाउ अब हमने दो तरह की IUPAC नेमिंग करनी है। फर्स्ट IUPAC रूल्स टू राइट फॉर्मूला, ओके, IUPAC रूल्स टू राइट फॉर्मूला। एक हमने करनी है IUPAC रूल्स टू राइट द फॉर्मूला। सेकेंड हमने करना है IUPAC रूल्स टू राइट नेम, ओके। अब फार्मूला जैसे किससे लिखना है आपको, फार्मूला फ्रॉम द नेम गिवन होगा, आपने उसे फार्मूला बनाना है। अब आपने नेम बनाना है फ्रॉम फार्मूला, तो हम दोनों ही रूल्स क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट IUPAC रूल्स टू राइट फार्मूला फ्रॉम नेम, अ नेम वुड बी गिवन टू यू, ओके। नेक्स्ट विल हम करेंगे IUPAC रूल्स टू राइट नेम फ्रॉम द फार्मूला, हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे IUPAC रूल्स टू राइट फार्मूला फ्रॉम नेम, ठीक है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक वुड बी हियर, ओके, वी विल स्टार्ट विद दिस वन, IUPAC रूल्स टू राइट फार्मूला, ओके। सो टू राइट फार्मूला अब कैसे होगा, ओके, IUPAC रूल्स टू राइट फॉर्मूला। सो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। अब देखो ये कैसे है, ये मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अ नेम इज़ गिवन टू यू, ओके, आपको एक नाम दे दिया गया है और आपने क्या है उस नाम से आपने फार्मूला बनाना है। जैसे आपको ये नाम दे दिया गया पोटाशियम, ओके, द नेम इज़ गिवन टू यू पोटाशियम हेक्सा, ओके, साइनो फेरेट 3, a name is given to you, okay, potassium hexacyanoferrate 3, a name is given to you. Now you have to make the formula from this one. कौन सा फार्मूला बनाना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फार्मूला बनाना है। अब क्या फार्मूला यहाँ पे बनेगा, देखिए जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी K3FeCN6, ऐसा कुछ फार्मूला बनेगा, K3FeCN6 ये फार्मूला बनेगा। अब ये कैसे बना, क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये कैसे बना, आपको नहीं पता ये कैसे बना, ठीक है। सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स दैट हाउ वी कैन राइट द फार्मूला फ्रॉम अ नेम, दिस इज अ फार्मूला एंड हाउ वी कैन राइट डिफरेंट फार्मूला फ्रॉम द नेम, ओके। फॉर दिस वन द फर्स्ट रूल विच यू हैव टू कीप इन माइंड, फर्स्ट रूल जो आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। हमेशा आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ रूल को बोलने से पहले, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं NaCl की, कॉमन है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है, कॉमन है, ठीक है, नॉर्मली सबको ही पता होता है। तो यहाँ पे सबको पता होगा आपको कि जो सोडियम है दैट इज़ पॉजिटिव एंड जो आपका Cl है दैट इज़ व्हाट, नेगेटिव। तो देखो हमेशा क्या होता है, व्हेन एवर ओके you write formula, whenever you write formula, okay, positive is followed by negative। कभी भी आपने जब फॉर्मूला लिखना है, देखो यहाँ पे देखो, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। जब भी कभी भी कोई भी फार्मूला होता है, हमेशा केमिस्ट्री में इस चीज़ को ध्यान रखें, मोस्टली इट इज़ पॉजिटिव फॉलोड बाय नेगेटिव। सो द फर्स्ट रूल, ओके, सो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल है जो हमारा, हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, द कैटायन इज फॉलोड बाय अनायन, ठीक है, कैटायन इज फॉलोड बाय व्हाट, कैटायन इज फॉलोड बाय अनायन। उसके बाद नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, the coordination entity
शुड बी रिटन इन वेयर, आपको पता है शुड बी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, आपको पता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इंक्लूड व्हाट, इट इंक्लूड टू थिंग्स, क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम, यही होता है इसमें। एंड सेकेंड थिंग क्या होती है, लाइगेंड्स। लाइगेंड कुड बी सेम टाइप, इट कुड बी सेम टाइप, और अनदर ऑप्शन यू हैव, इट कुड बी ऑफ different type. Okay, so we are having central metal atom, this is the ligand, it could be of same type, it could be of different type. So this is the second point, that the first point is the cation is followed by anion. The second point we are having, that is the second point which I am having, that is the coordination entity should be written in square bracket, that is a central metal atom and the ligand should be same, could be same, it could be different, ठीक है। now अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे हम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए भी आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी में देखो सेंट्रल मेटल एटम लिखनी है आपने, लाइगेंड लिखना है। अब किसको आपने पहले लिखना है, किसको आपने बाद में लिखना है, ये क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट जब भी आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखनी है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए कुछ रूल्स है हमारे पास। ओके, जब भी आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखनी है, आपने क्या लिखना है, फर्स्ट आपने किसका सिंबल डालना है, सिंबल ऑफ मेटल। आपने सबसे पहले किसका सिंबल डालना है, मेटल का डालना है। कौन सी मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम वहाँ पे होगी, ठीक है। फॉलोड बाय, देखो फॉलो किसको करना है, दिस शुड बी फॉलोड। अभी इसको कौन फॉलो करेगा, फॉलोड बाय व्हाट, लिगेंड्स। पहले तो आपने क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का सिंबल डालना है। जब जैसे ब्रैकेट है और मैंने बोल दिया निकल, ठीक है, निकल टेट्रासाइन मैंने बोल दिया, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, मेटल का सिंबल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद लाइगेंड का डालना है। लाइगेंड क्या है, जैसे मैंने बोला निकल, ओके, टेट्रासाइन, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ बोल दिया अपनी तरफ से। यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेटल का नाम लिख दिया, देन यू विल राइट CN। अब कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, टेट्रा, ओके, लाइक दिस। फर्स्ट यू विल राइट द सिंबल ऑफ द मेटल फॉलोड बाय लाइगेंड्स। अब ये तो था कि अगर तुम्हारे पास एक ही लाइगेंड है, इफ़ यू हैव डिफरेंट लाइगेंड। अब मैंने तुम्हें 2 तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ाए, एक मैंने आपको करवाए होमोलेप्टिक, एक मैंने आपको करवाए हेटेरोलेप्टिक, है ना। अब तो ये तो था, ये किसकी एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ विच वन, होमोलेप्टिक, ठीक है। ये मेरे पास एग्जांपल किसकी है, होमोलेप्टिक की। अब मेरे पास हेटेरोलेप्टिक भी हो सकता है। हेटेरोलेप्टिक में अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, सपोज आई एम हैविंग द एग्जांपल दैट इज़ cobalt Cl2, okay, this is the example which I am having, cobalt Cl2, okay, and ammonia 4Cl, so this is a heteroleptic complex। अब अगर तुम्हें इसका नाम गिवन है, तुम्हें कैसे डिसाइड करना है कि तुमने किसको पहले लिखना है। पहले तो आपका रूल यही कहता है, फर्स्ट सिंबल ऑफ व्हाट, मेटल, आपने मेटल का सिंबल दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखने हैं, लाइगेंड्स लिखने हैं। अब लाइगेंड्स को कैसे लिखना है, यू हैव टू राइट अल्फ़ाबेटिकली, ओके। आपने क्या लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, ओके। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, अब अल्फ़ाबेटिकली जब आपने लिखना है, ये देखो, अब अल्फ़ाबेटिकली ऐसे नहीं देखना कि भाई ये तो अमीन है, ठीक है, इसको बोलते क्लोरीन, ये है अमीन, तो ए पहले आ गया और सी बाद में आ गया, नो, इट्स रॉन्ग। आप कैसे लिखोगे, आप इसको अल्फ़ाबेटिकली जैसे है वैसे ही ऑब्जर्व करोगे। सो यहाँ पे देखिए Cl, सो क्लोराइड C, और अमोनिया में N। सो आप क्या लिखोगे, पहले क्लोराइड लिखोगे, फॉलोड बाय किसको लिखोगे, N वाले लाइगेंड को लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट है, ओके, दिस इज़ द फ्यू ऑफ द रूल्स। आगे रूल्स डिस्कस करें अब, होप सो आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। हम आगे नेक्स्ट रूल के लिए चलते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट रूल हमारा यही है, व्हेन वी आर अरेंजिंग द लाइगेंड्स, ओके, व्हेन वी आर अरेंजिंग द लाइगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली, अब आप क्या है लाइगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रहे हो, ठीक है, यू आर अरेंजिंग द लाइगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली। आपको मैंने क्या बोला, आपने क्या दिखना है, हैव टू सी व्हाट, हैव टू सी, क्या देखेंगे आप, फर्स्ट सिंबल ऑफ लाइगेंड, फर्स्ट सिंबल ऑफ लाइगेंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, आपको गिवन है वाटर, आपको गिवन है, अब वाटर को कैसे लिखते हैं हम, ये होगा एक्वा, ठीक है, एक्वा, वाटर को हम एक्वा लिखते हैं जब हम उसको लाइगेंड की तरफ यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट अमोनिया, ओके, इसको हम लिखते हैं अमीन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट, हम और कोई ले लेते हैं OH नेगेटिव, सो दिस वुड बी हाइड्रोक्सो। ये भी पता चलेगा आपको, हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे इसको, ओ ऑक्सो क्यों लिया, या इसको तो चलो हम ऐसे ले रहे हैं क्योंकि ये न्यूट्रल लाइगेंड्स है दोनों, वाटर भी न्यूट्रल है, अमोनिया भी न्यूट्रल है, लेकिन ये जो है ये हम ऑक्सो में क्यों एंड कर रहे हैं या के रूल्स आ रहे हैं उसका भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब मेरे पास ये देखिए 3 तरह के लाइगेंड है। अब बात वहाँ पे आ गई, आप कहोगे ए ये तो पहले आ रहे हैं, H बाद में आ रहा है, नहीं, आपने क्या देखना है, आपने सिंबल देखो उसके, ये उसके सिंबल बने, ठीक है। जब उसके सिंबल बने हैं तब आप देखो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम बात करें ABCDEH, H वुड बी द फर्स्ट वन, सो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास 3 तरह के लाइगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, आप वाटर को पहले लिखोगे, ठीक है, ABCDEH, H पहले आ रहा है, IJKLMN, N फिर N आ रहा है, सो फिर नेक्स्ट आपका लाइगेंड कौन सा होगा, अमीन होगा, एंड द लास्ट नेक्स्ट वन कौन सा होगा, OH होगा। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स लाइगेंड्स हैं, है ना, एक तो मेरे पास ये सिंपल सा लाइगेंड होता है, जैसे ये है Cl, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये देखो ये एक तरह से कंपाउंड फॉर्म में लाइगेंड प्रेजेंट है। तो जब भी आपने ऐसे एक से ज़्यादा लाइगेंड लिखने हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, ये हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, स्क्वायर ब्रैकेट होगी, यहाँ आपकी मेटल होगी, अब आपने इनको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट वाटर, ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट अमोनिया, नेक्स्ट ब्रैकेट OH। क्यों मैं इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि मेरे लिए ऐसे डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, क्या मुझे क्या पता चल रहा है, क्या गलत है ना ये, जबकि ये तो एक है, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अब जब हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स लाइगेंड होगा हम उसमें ब्रैकेट लगा देंगे, सो आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है यहाँ पे, क्लियर है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट रूल, ओके। उसके बाद अगर नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, अब नेक्स्ट रूल देखिए हमारा क्या कहता है, कहते if the two ligands have same defining atom, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखो किसकी ले रही हूँ मैं, यहाँ है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है, एक है N2 एक है NH3, दोनों लाइगेंड है, ठीक है, मेरे पास 2 लाइगेंड है यहाँ पे N2 एंड NH2। अब मैं किसको पहले लिखूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मैं किसको पहले लिखूँ। जब मैंने मेटल लिख दी, अब मैंने मेटल लिख दी, मेटल के बाद मैंने लाइगेंड लिखना है, दोनों में से मैं किसको पहले लिखूँगी, सो मैं इसको पहले इसको बाद में लिखूँगी और इसको पहले लिखूँगी। सो ये रूल क्या कहता है, इफ़ द 2 ligands हैव द सेम डिफाइनिंग एटम like this, then choose that ligand first, okay, choose that ligand first which is having less number of those items। तो आपने क्या करना है, उस लाइगेंड को पहले चूज़ करना है जिसके पास वो एटम कम है। तो अगर मैं N2 और NH3 की बात कर रही हूँ तो यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ कितनी है 2 नाइट्रोजन है, तो मैंने क्या है इसको यूज़ करना है, NH3 को यूज़ करना है एज अ लाइगेंड, क्लियर है।
सो दिस वुड बी यूज्ड एज अ लाइगेंड। पहले मैं मेटल लिखूँगी, फिर मैं NH3 लिखूँगी, ओके, फिर मैं कौन सा लिखूँगी, N2 लिखूँगी, एंड देन दिस वुड बी देयर। ओके, क्लियर है। सो जब भी आपने लिखना है, आपने पहले मेटल लेनी है, उसके बाद आपने लाइगेंड्स, रिपीट कर रही हूँ, लाइगेंड्स को अरेंज करना है, लाइगेंड्स को आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, जो अभी तक हमने किया वही रिपीट कर रही हूँ। लाइगेंड्स को आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। जब आप लाइगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तब आपने क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको वर्डिंग में नहीं देखना, उनको सिंबल की फॉर्म में देखना है, और सिंबल की फॉर्म में देखो कौन सा लाइगेंड पहले आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको अरेंज कर देना है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक ही सेम तरह, मेरे पास कुछ ऐसे लाइगेंड हैं जिनके पास फर्स्ट डिफाइनिंग एटम जो है, ये देखो फर्स्ट एटम जो इनका सेम है, तो मैं उसको चूज़ करूँगी जिसके पास वो कम है, वो एटम कम है, ठीक है, मैं उसको चूज़ करूँगी। अब नेक्स्ट मेरा रूल क्या कहता है, इफ़ द लाइगेंड्स, अगर मेरा नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है, इफ़ द लाइगेंड्स, ओके, इफ़ द लाइगेंड्स हैव same number of first defining atom like NH3 and NO2 negative। अब देखो, अब भी सेम ही है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ही है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ गया, दोनों के पास सेम ही है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, तो मैं किसको पहले लिखूँगा, ठीक है। सोचिए, आप बताइए ज़रा किसको पहले लिख सकते हैं, सोच सकते हैं आप। कैसे होगा, सो इन दिस केस द नेक्स्ट symbol will decide, okay, the next symbol decide, ये डिसाइड करेगा, अब ये सिंबल डिसाइड करेगा कि अब देखिए हाइड्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, सो इसके अकॉर्डिंग जो है मेरा अमोनिया मेटल, देन अमोनिया, देन नेक्स्ट कौन आएगा, NO2, ठीक है। अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेम था तो मैंने कम वाला चूज़ किया, यहाँ पे सेम नहीं था, एक में ज़्यादा थे, सेम था लेकिन एक में ज़्यादा थे, एक में कम थे, तो मैंने जिसमें कम थे मैंने उसको चूज़ किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट डिफाइनिंग एटम भी है भी सेम और सेम नंबर में है, तो फिर इसमें क्या करूँगी, मैं नेक्स्ट वाला देखूँगी, नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेटिकली फिर से देखूँगी, ABCDH पहले आ रहा है, ठीक है, और ऑप्शन बाद में आ रहा है, सो इसके अकॉर्डिंग आई विल चूज़ दिस वन, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द कंसेप्ट, क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट रूल, ओके। सो नेक्स्ट रूल हम बात करें अब, सो इन केस ऑफ अ पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स, अब पॉलीडेंटेट लाइगेंड आपको होप्सो पता होगा। नेक्स्ट रूल हमारा 7 रूल हमारा क्या कहता है, ओके, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, इन केस ऑफ द पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स, ओके। अब पॉलीडेंटेट में डिफरेंट होता है, पॉलीडेंटेट जैसे बात कर लूँ मैं, EN की बात कर लेती हूँ, EN, इथिलीन डायमीन। अब यहाँ देखिए इथिलीन डायमीन है ना, मैं इसको ऐसे देती हूँ, लिखती हूँ, तो इसमें इसका जो फर्स्ट सिंबल है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे, ये हो गया इथिलीन डायमीन में। अब मैं EDTA की बात करूँ तो उसमें ये फर्स्ट सिंबल है, सो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे है नेक्स्ट रूल है हमारा, हाँ वही कि जब भी आपने पॉलीडेंटेट लाइगेंड वगैरह यूज़ करने हैं तो इनकी जो एब्रीवेशन है, यहाँ पे देखिए इसकी भी जो एब्रीवेशन है ये आपने क्या यूज़ करनी है, जैसे पिरिडिन है आपने PY लिखना है, उसको स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। अगर इथिलीन है, इथिलीन डाइमीन है, उसको EN लिखना है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में यूज़ करना है। EDT है, यू विल राइट EDTA, ठीक है, आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, यू विल यूज़ दिस। उसके बाद देखिए अब जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको मैंने बता दिया कि पॉजिटिव फॉलोड बाय नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर तो आपकी कोऑर्डिनेशन मान लो पहले आपने क्या करना है, उसका नाम पढ़ना है, नाम पढ़ने के बाद अगर तो केटाइन आ रहा है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की थी, यहाँ देखो
ये देखो पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब अगर पहले केटाइन आ रहा है तो आप ये देखो यहाँ पे ये केटाइन है, ये एनाइन है। अगर मैं दोनों को सेपरेट आउट करूँगी सो आई विल गेट 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। तो मेरे पास कुछ ऐसे आएगा 3K पॉजिटिव FeCN6 3 नेगेटिव, कुछ ऐसे आएगा। तो ये केटाइनिक है, ये अनायनिक है। सो जब भी आपने किसी भी उसको लिखना है तो नेक्स्ट रूल यही कहता है आपका कि जब भी आपने किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखना है तो आपने क्या करना है, आपका नेक्स्ट रूल यही कहता है कि व्हेन यू आर हैविंग अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो आपने लिखना है तो आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को भी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जब आपने लिखना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जब आपने लिखना है तो आपने हमेशा क्या ध्यान रखना है, पहले पॉजिटिव को लें फॉलोड बाय नेगेटिव को। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द रूल्स टू राइट द फॉर्मूलाज, ओके, फॉर फ्रॉम नेमिंग। ओके, होप द रूल्स शुड बी क्लियर टू यू। आपने क्या करने हैं, आप अभी इन रूल्स को पढ़िए। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी दैट वुड बी टू राइट द we will use to write the name from the formula, that formula would be given to you, आपने उससे नेम बनाना है। ये हमने रूल्स किए कि आपको फॉर्मूला गिवन है, आपने उससे नेम बनाना है, वाइस एंड वर्सा। सो अब आपने क्या करना है, इनको रूल्स को अच्छे से लर्न करना है। सो देन आई विल डिस्कस फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, नेक्स्ट वीडियो। उसके अलावा नेक्स्ट में हम रूल्स करेंगे टू राइट द फॉर्मूला। ओके, थैंक यू एवरीवन।